Okay. Today our topic is kinematic equations, and many students asked me that how we can prove kinematic equations with the help of the graphical method and with the help of the integration method or calculus method, we can say. So first thing, today we'll discuss about the both process to prove the kinematic equations. In which way we can prove kinematic equations with the help of the graphical method, as well as how we can prove the kinematic equations with the help of the calculus method. Both things we'll discuss. Fine. One by one we'll discuss. First thing we have to know what is the meaning of the graphical method and what is the meaning of the calculus method. ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस वे में बनाते हैं हम लोग, ये हमें आना चाहिए. दूसरी चीज़, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेके हम किस वे में काइनेमेटिक इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं. फाइन. ओके. फर्स्ट थिंग, काइनेमेटिक इक्वेशंस. काइनेमेट्रिक इक्वेशंस. Okay, basically there are four kinematic equations. One by one we'll discuss here. First one, v is equal to u plus at. This is the first kinematic equations, and this is the relation between v, u, a and t. This equation tells us about the relation between velocity and time. That is why this relation is also called velocity time relation. Velocity time relation. Second equation of the kinematic, we can say that S is equal to ut plus half at square. Here again we are having the four parameters, we can say. One is s, displacement; u, initial velocity; time, t; and a, acceleration. So basically it tells us about the position and time. That is why this is called position time relation. This is called position time relation. Getting? And third one is the v square minus u square is equal to 2as. This equations is having again four parameters. One is the velocity, final velocity; second one is the initial velocity; third one is the acceleration as displacement. So again this equation tells us about the velocity and position. So this is called position velocity relation. Position velocity relation. Getting? And these are the three kinematic equations, we can say. And fourth one is the SNth. SNth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. In this way we are having the four kinematic equations. In these four kinematic equations, we have to understand all the four kinematic equations will be valid only for one condition, and that condition is this acceleration should be uniform. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी जाके ये काइनेमेटिक इक्वेशंस वैलिड होंगे, अदरवाइज काइनेमेटिक इक्वेशंस वैलिड नहीं हो सकते. तो इसका मतलब है ये सारे के सारे इक्वेशंस वैलिड तभी होंगे व्हेन एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी जाके ये चारों काइनेमेटिक इक्वेशंस वैलिड होंगे. और हमें ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है देन नाउ वी आर एलिजिबल टू यूज द एनी
काइनेमेटिक इक्वेशंस। अगर उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन एंड वी हैव टू प्रूव ऑल दिस काइनेमेटिक इक्वेशंस with the help of the graphical method and with the help of the integration method or calculus method, we can say. Fine. Okay. First three equations we have to prove with the help of the graphical method. First one I am writing here. Getting? अगर हो गया तो मैं यहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं प्रूव कर रहा हूँ v इज इक्वल टू u प्लस 80। गेटिंग? सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, अंडरस्टूड दिस वन? तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, ओके, नाउ वन बाय वन विल डिस्कस। फर्स्ट वन v इज इक्वल टू u प्लस 80। we have to prove this with the help of graphical method. First we are studying about graphical method. ग्राफिकल मेथड को यूज करके हम कैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80 को निकाल सकते हैं। गेटिंग? तो ग्राफिकल मेथड में हमें पहला चीज़ वेलोसिटी टाइम, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं पहले से बताया ये चीज़ को कि काइनेमेटिक इक्वेशन जितने भी होते हैं वो तभी वैलिड होंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। और दूसरी चीज़ ग्राफिकल मेथड में हमें ये भी आना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड में व्हेन एवर वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन देन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Yes, we can prove this one. It means we can say the slope of velocity time graph represents the acceleration. And second thing, the area under VT graph or area under velocity time graph represents the displacement covered by the body. ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे जानना चाहिए, तभी जाके हम इस इक्वेशंस को प्रूव कर पाएंगे। तो पहला इक्वेशंस को मैं ये कर रहा हूँ कि इक्वेशन पहले हम लोग ग्राफिकल मैंने ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, सपोज this is the our coordinate system I have taken. This is x axis and this one is y axis and O is the origin of the coordinate system. Now suppose the initial velocity of the body is not equal to 0. It means उसका इनिशियली वेलोसिटी कुछ है। अगर उसका इनिशियली कुछ वेलोसिटी है तो इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? मान के चलो ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u को रिप्रेजेंट कर रहा है, u। तो यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ हम जानते हैं दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, गेटिंग? अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके, इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। जब ये बॉडी ए पॉइंट में था उसका वेलोसिटी था u। जब ये बॉडी बी पॉइंट में पहुंचा इसका वेलोसिटी हो गया v। मान के चलो इसका वेलोसिटी हो गया v। तो अब along the x axis I have taken time. So we can say this is the time axis and along y axis I am taking the velocity. Getting? तो y axis में मैं velocity लिया हूँ, x axis में मैं time लिया हूँ। तो इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ ऐसा मिला, स्ट्रेट लाइन पाथ इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। नाउ suppose I have drawn a perpendicular from the point B to the x-axis and suppose this point, this intersecting point of this line and x-axis is equal to suppose M. Getting? Now I have drawn, suppose I am drawing a perpendicular from the point A to this particular line and this intersecting point is equal to suppose C. I am writing and I have
I am drawing the perpendicular from the point B to the y axis and suppose this point is equal to I am taking n. फाइन. तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कंसेप्ट है हमें ये बताता है कि अगर ए पॉइंट में अगर एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, जब ये बॉडी ए पॉइंट पे था, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u था तो हमें ये जो वैल्यू है ओ ए जो वैल्यू होगा ये हमें u को बताएगा. आर यू गेटिंग? दूसरी चीज़, जब ये बॉडी b में पहुंचा उस समय उसका वेलोसिटी हो गया v. इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ y एक्सिस के प्रति तो ये जो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हमें बताएगा फाइनल वेलोसिटी v. इसका मतलब ये वाला वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार ये वाला वैल्यू हमें v को बताएगा. दूसरी चीज़, ये जो O से लेके M तक, जब बॉडी A से लेके B तक पहुंचा, x एक्सिस में बॉडी कहाँ तक पहुंच गया? M पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके M पॉइंट तक पहुंचा. तो A से B तक पहुंचने के लिए मान के चलो बॉडी को टाइम लगा t सेकेंड, तो मैं यहाँ पे O से M तक पहुंचने के लिए टाइम लगा t सेकेंड. ये आपका t सेकेंड है मान के चलो. अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे क्या निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ. हमारा वी टी ग्राफ कौन सा है? ये है हमारा वी टी ग्राफ. अगर ये वी टी ग्राफ है तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ थीटा. तो थीटा हमें लेना पड़ेगा. सपोज मैं यहाँ पे लिया, लेट दिस एंगल इज थीटा. If this angle is theta, theta is the angle made by this VT graph with time axis we can say. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ let angle of BAC is equal to theta. तो जिस VT ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है, हम ये देखते हैं कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल करके ढलान है, एंड दैट इज एक्चुअली स्लोप एक्चुअली. तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा जब हम निकालेंगे, और हम ये जानते हैं द एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू acceleration is equal to slope of velocity time graph or VT graph I am writing. Are you getting this point? Acceleration is equal to slope of VT graph. अगर हम ये जानते हैं, so we can write acceleration is equal to slope of VT graph can be found with the help of the tangent of theta. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा. और tan थीटा का वैल्यू कौन सी ट्रायंगल में? ये वाला ट्रायंगल पे लेते हैं, BCA. ये 90 डिग्री है, तो BCA और ACB राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B. सो BC डिवाइडेड बाई AC वी कैन राइट. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC डिवाइडेड बाई AC वी कैन राइट. BC के जगह में वी कैन राइट BM माइनस CM. सो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू, इन केस ऑफ BC आई एम राइटिंग BM, यहाँ पे लिख देता हूँ BM माइनस CM डिवाइडेड बाय AC इज देयर और AC. और हम ये जानते हैं ये एक रेक्टेंगल है, तो AC एंड OM बोथ आर इक्वल. सो इन केस ऑफ AC वी कैन राइट OM ऑल्सो. अब जो वैल्यू है उसको हम पुट करना स्टार्ट कर लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज A कैन बी रिटर्न एज, इन केस ऑफ BM क्या बताता है? फाइनल वेलोसिटी V को, माइनस है माइनस CM क्या बता रहा है? CM इज इक्वल टू OA दैट इज U डिवाइडेड बाई OM क्या बता रहा है? OM दिस इज द टाइम, सो T. So this implies we can write here V minus U is equal to AT. T यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया. So this implies V we can write U plus AT. This is the first equation of the kinematics. And
the first equation of the kinematics we have proved with the help of graphical method. This is the graphical method which can be used to find or to prove the velocity time relation or v is equal to u plus at. Getting? Now I am coming to the second equation of the kinematics. यहाँ पे कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स हमें ये बताता है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो ग्राफ में हमें फिर ये जानना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है। द एरिया अंडर वी टी ग्राफ represents the displacement. So ये हमारा VT ग्राफ है। अगर ये VT ग्राफ है, इसके अंडर में जो एरिया है, कौन सी एरिया है? ये वाला एरिया है पूरा। तो ये एरिया हमें बताता है कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू area under velocity time graph, area under VT graph. We can write this. So this implies S is equal to area under VT graph. थोड़ा सा इसको देखते हैं। VT ग्राफ कौन सा? ये AB हमारा VT ग्राफ है एक्चुअली। तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, ये वाला एरिया है पूरा। तो इसका मतलब ये एरिया किस तरह का दिख रहा है? मैंने ये वाला देखो, मैं जो ये लाइनिंग कर रहा हूँ AOM एंड BA, ये जो ग्राफ है, ये एरिया है, ये वाला जो फिगर है, ये फिगर कैसा दिख रहा है? दिस इज द ट्रापेजियम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ trapezium, which one? AOMB. अब ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू द सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स इंटू द हाइट। गेटिंग? तो दैट फॉर्मूला वी हैव टू पुट हियर। सो दिस इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू वी कैन राइट हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे पैरेलल लाइन्स कौन कौन है? OA, AO एंड BM, बोथ आर पैरेलल लाइन्स। तो सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स के जगह में मैं लिख सकता हूँ AO प्लस BM, ओके, इंटू हाइट किसको बोला जाता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पैरेलल लाइन्स इज एक्चुअली कॉल्ड द हाइट. So that is why here these and these both are the parallel lines and this is the perpendicular we can say. So that is why OM is the height we can say. So into OM we can write. Yes. So this implies that S is equal to we can write half into AO. AO क्या बता रहा है ये? AO हमें बताता है this is U. Getting? ये वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से U प्लस BM हमें बता रहा है V इंटू OM हमें बताता है दिस इज द टाइम, दैट इज वाई T. गेटिंग? अच्छा, अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें V की ज़रूरत नहीं है। अगर V की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दिस V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इन केस ऑफ V वी कैन पुट U प्लस AT। सो मैं इस V के जगह में U प्लस AT में पुट कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इन केस ऑफ V मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ S इज इक्वल टू हाफ U प्लस, इन केस ऑफ V U प्लस AT इंटू T इज देयर, इंटू T लिख दिया। ये क्यों लिखा मैं? एज वी नो दैट V इज इक्वल टू U प्लस AT। गेटिंग? सो दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू हाफ U प्लस U दैट इज 2U प्लस AT into T. Getting? So this implies that S is equal to, अब एक काम करो, T by 2 को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। So T by 1/2 इंटू 2U इंटू T, पहला टर्म बना 1/2 2U इंटू T प्लस सेकेंड हाफ इंटू AT, हाफ इंटू AT इंटू T इंटू T। Getting the point?
टी मल्टीप्लाई कर दिया, देखो हाफ भी दोनों, हाफ यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, टी भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और टी भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. So this implies that this 2 and 2 will be cancelled out. S is equal to, we are writing ut plus half at square. In this way we can prove the second equation of the kinematics with the help of the graphical method. And this is the first equation, this is the second equation of the kinematics. Are you getting this point? Okay. Third equation of the kinematics. In the third equation of the kinematics we know v square minus u square is equal to 2as. तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, फर्स्ट राइट डाउन दिस वन. गेटिंग? अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूँगा फिर. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. रिटर्न? ओके. तो मैं हटा रहा हूँ इसको. अब देखो थर्ड इक्वेशन को मैं प्रूव कर रहा हूँ. Third equation of the kinematics is saying that v square minus u square is equal to 2as. मुझे ये प्रूफ करना है. यहाँ पे देखो 4 पैरामीटर फिर है हमारे पास, v u a s. तो हम एक काम करते हैं, एस फाइंड करते हैं. डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड में, ग्राफ के केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट. तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ प्रूफ. वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू area under VT graph. We know this. Okay. area under VT graph. area under VT graph हमें बताया डिस्प्लेसमेंट को. सो दिस इम्प्लाइज दैट S, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं S पुट कर दिया. एरिया अंडर VT ग्राफ, यहाँ पे एरिया कौन सा है, AO. VT ग्राफ हमारा ये है, वही एरिया है AOMB. तो यहाँ पे मैं लिख दिया एरिया ऑफ ट्रापेजियम AOMB. गेटिंग? AOMB ट्रापेजियम का जो एरिया होगा वही आपका एरिया अंडर VT ग्राफ है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर एरिया अंडर ट्रापेजियम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रापेजियम AOMB. सो दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू, अगेन एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आंसर हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स इंटू हाइट अगेन. सो मैं यहाँ पे लिखा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइन्स. यहाँ पे हमारा पैरेलल लाइन्स वही है AO एंड BM. तो मैं AO प्लस BM इंटू हाइट इज देयर एंड हाइट इज हियर OM वी कैन टेक. सो OM. सो दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू हाफ AO की जगह मैं पुट कर सकता हूँ U प्लस BM की जगह में वी कैन राइट V इंटू OM की जगह में वी कैन राइट T आई एम राइटिंग. लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स में देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है. वी डोंट रिक्वायर टाइम हियर. तो पहला वर्क हमारा यहाँ पे ये बन जाता है कि टाइम को हटाना. तो टाइम को हटाने का तरीका क्या है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को फिर पकड़ते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी नो दिस, वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी. तो यहाँ पे टाइम क्या बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए. तो मैं इस t के जगह में, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, वी कैन राइट हाफ इंटू u प्लस v के जगह में, सॉरी v लिखते हैं, t की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये u इधर चला गया, v माइनस यू, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए. ये कहाँ से मिला मुझे, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, t कैन बी रिटर्न एज v माइनस यू अपॉन ए. दैट इज वाई इन केस ऑफ t आई एम पुटिंग दिस वैल्यू. सो दिस वैल्यू, नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज s इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे देखो ये v प्लस यू है
और ये v माइनस यू है, u प्लस वी जो होता है v प्लस यू वही होता है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मैं इसके जगह में लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब दिस इम्प्लाई 2a को मैं यहाँ ले आता हूँ, सो 2as इज इक्वल टू वी कैन राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द third equation of the kinematics. In this way, all the three kinematic equations can be proved with the help of graphical method, and this is the graphical method we can say. Getting? First write down this one. ओके इसको ना हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसा? देखो यहाँ पे देखो एरिया अंडर वीटी ग्राफ को एरिया ऑफ ट्रापेजियम एओएम भी कर दिया मैं। ये जो ट्रापेजियम है हमारे पास, इस ट्रापेजियम को मैं दो टुकड़े में अगर डिवाइड कर दूँ, इसका मतलब ये वाला हिस्सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला हिस्सा एक रेक्टेंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा ट्रापेजियम का एरिया वही होगा। तो आप इस अगर ट्रापेजियम का एरिया को पुट ना करके अगर हम इस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ एम सी भी अगर पुट करेंगे then also it will be correct and same result we can get. Getting my point? In this way the three kinematic equations we have proved with the help of graphical method. Okay, now I am coming to the point calculus method. Calculus method में हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? Getting my point? Okay, हटाऊँ इसको मैं? Okay, graphical method understood this one? Okay, देन एक काम करते हैं ओके स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक माने इक्वेशंस को माने ये कैलकुलस मेथड को यूज करके प्रूफ कैसे किया जाएगा। Graphical method completed. Now we will discuss about the calculus method. Fine, calculus method मैं यहाँ पे एडिंग कर देता हूँ calculus method। देखो calculus method में हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक? ओके, तो सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो सपोज ये एक बॉडी है, ये बॉडी इनिशियली सपोज इट इज़ द एट पॉइंट ए एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू सपोज यू। फाइन, एंड आफ्टर टी टाइम इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो इस डायरेक्शन पे अगर इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ये जाएगा तो मान के चलो t टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच गया, t टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच गया b पॉइंट पे, एंड इसका वेलोसिटी भी मान के चलो चेंज हो गया एंड द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। वी आर लुकिंग टू पॉइंट्स ओनली, दैट इज़ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ए पॉइंट में बॉडी के पास वेलोसिटी u था, जब ये बॉडी बी पॉइंट में पहुँचा उसके पास वेलोसिटी आ गया v। इसका मतलब उसका वेलोसिटी u से v चेंज हो गया है और उसके लिए उसको टाइम लगा t सेकेंड। माने इनिशियली जब यहाँ पे ये माने बॉडी ए पॉइंट पे था टाइम 0 था, अब यहाँ पे जब बॉडी पहुँचा टाइम t सेकेंड लगा, और A से B तक जाने के लिए इस ये जो गया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू सपोज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लगा s मीटर सपोज, एंड इनिशियली s को मैं 0 ले लेता हूँ। आर यू गेटिंग? तो ये पैरामीटर हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स को अगर मैं प्रूव करना चाहूँगा तो कैसे कर सकता हूँ?
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट एक्सेलरेशन, वी नो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वी नो दैट velocity or acceleration of the body A is equal to, we can write dv upon dt. Yes, the rate of change of velocity with respect to time. यहाँ पे ये dv और dt क्या चीज़ है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. इट इज़ सपोज इक्वेशन 1 कर दिया मैं. हियर dv इज द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt. Small change in velocity in small time dt. माने dt टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, dv हुआ है. तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt. दैट इज वाई आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. गेटिंग? सो दिस इम्प्लाइज अब इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी. वी कैन राइट यस, डी टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया a dt. गेटिंग? इसको मैं इक्वेशन 2 कर दिया. अब ना d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, d स्टैंड्स फॉर चेंज. अगर मुझे v निकालना है तो आई हैव टू रिमूव दिस डेरिवेटिव and it means we have to take one process which is the just reverse process of this derivative, and we know that the reverse process of derivative is called integration. So we have to take the integration on both sides. Taking integration on both sides, what we get, integration of dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी. वी कैन राइट dv के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा हमारे लिए. यहाँ पे लिमिट क्या है, इनिशियली उसका वेलोसिटी था कितना u, फाइनली उसका वेलोसिटी कितना हो गया v. तो फाइनल लिमिट क्या हो जाएगा, मैंने इसका मतलब लोअर लिमिट इज़ u, हायर लिमिट इज़ v, एंड ए डी टी. यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम. सो टाइम के लिए हमारा लिमिट क्या है, पहले टाइम था 0, बाद में जब बी पॉइंट में पहुंचा उसका टाइम हो गया t. तो लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t. गेटिंग? सो दिस इम्प्लाइज दैट जो कंस्टेंट है दैट हियर इन केस ऑफ हियर a, आई टोल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, इन केस ऑफ द एवरी काइनेमेटिक इक्वेशंस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. सो एक्सेलरेशन विल बिहेव लाइक ए constant here, so it can be taken out from the integration. So मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, this can be written as a into integration of dt limit from 0 to t. अब dv का इंटीग्रेशन we know v limit from u to v is equal to a into dt का इंटीग्रेशन t limit from 0 to t. Yes, so this implies that first put the upper limit minus put the lower limit, u is equal to a into put the upper limit t. t की जगह में t पुट करेंगे तो t ही बचेगा, माइनस t की जगह में 0 पुट करो, 0 बन जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट v माइनस u इज इक्वल टू ए टी. वी आर राइटिंग. सो दिस कैन बी रिटर्न एज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स. So in this way we can prove the first equation of the kinematics with the help of calculus method. This is the calculus method we can understand. यहाँ पे खाली हमें एक चीज़ आना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है. एंड इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड इन विच वे व्हाट इज़ द कैलकुलस मेथड एंड इन विच वे वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन. वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. सो यहाँ पे इंटीग्रेट करने का तरीका खाली हमें आना चाहिए और कुछ नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? कंप्लीट? ठीक है. Come to the second equation of the kinematics. Second equation, s is equal to ut plus half at square. अगर मुझे ये प्रूव करना है s is equal to ut plus half at square, अगर प्रूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे s फाइंड करना है. s फाइंड करने के लिए हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नो डी एस अपॉन डी. वही डायग्राम पे मैं बता देता हूँ, बेटर होगा. तो जब बॉडी a में था इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, जब बॉडी b में पहुँचा इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v.
तो जब बॉडी ए में था डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया था मान के चलो 0, बिकॉज ये ए पॉइंट से अपना जर्नी को स्टार्ट किया था। इसका मतलब है ए पॉइंट में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब ये बी पॉइंट में पहुंचेगा उसको मान के चलो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस मीटर, तो एस मीटर की जगह में यूनिट भी लिख सकते हैं, एस यूनिट। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं ऐसा ये करता हूँ, प्रूफ वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। गेटिंग? वी कैन राइट दिस। इसको मैं इक्वेशन 1 कर दिया। यहाँ पे ds क्या है और dt क्या है, ठीक है। तो ds मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर ds इज द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt। स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt, माने dt टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है, ds चेंज हुआ है सपोज। और हम ये जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। गेटिंग? ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट ds क्या बन जाएगा, ds वी कैन राइट v इंटू dt। यस, again we know that in case of v we can put v is equal to u plus at, already we have proved this one। so v की जगह में u plus at मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ u plus at होल इंटू dt। क्यों लिखा मैं ये चीज़ को, एज वी नो दैट v is equal to u plus at। यस, ओके, सो दिस इम्प्लाइज ds इज इक्वल टू, अब ये dt को दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा u dt प्लस at dt। यस, अब हमें ना ये ds है, d स्टैंड्स फॉर अगेन डेरिवेटिव, वी हैव टू रिमूव द डेरिवेटिव, सो वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन on both sides, what we can write, integration of ds is equal to integration of u dt plus integration of at dt। सब अलग अलग, जब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो इंटीग्रेशन पूरा सेपरेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं दो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। अब लिमिट पुट करेंगे, ds मैंने s डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल लिमिट क्या था 0 टू हायर लिमिट क्या है s, तो यहाँ पे 0 टू s वी कैन राइट। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t, टाइम का लिमिट क्या होना चाहिए 0 से t टाइम, सो लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी t। यहाँ पे अगेन टाइम इज वेरिएबल, सो अगेन लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी t। गेटिंग? सो दिस इम्प्लाइज दैट जो कंस्टेंट है बाहर निकाल लो पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds limit from 0 to s is equal to u the initial velocity, and we know that initial velocity अगर एक बार आ गया है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी और चेंज तो हो ही नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी चेंज होगा अलग बात है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट फ्रॉम 0 to t प्लस a, I told from the beginning acceleration is uniform, so acceleration can be taken out from the, acceleration will behave as constant and it can be taken out from the integration, so a can be taken out from the integration of t dt we can write limit from 0 to t। yes, so this implies ds का इंटीग्रेशन s लिमिट फ्रॉम 0 to s इज इक्वल टू u इंटू dt का इंटीग्रेशन t लिमिट फ्रॉम 0 to t प्लस a इंटू t dt का इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो यहाँ पे पावर 1 है तो t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज t स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to t we can write। So this implies of
लिमिट पुट करना स्टार्ट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो s की जगह में s पुट करेंगे तो s बनेगा, माइनस s की जगह में 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। u इंटू पुट द अपर लिमिट t माइनस पुट द लोअर लिमिट 0, गेटिंग माई पॉइंट, प्लस a इंटू पुट द अपर लिमिट t की जगह में t पुट करो, t स्क्वायर बाई 2 माइनस पुट द अपर लोअर लिमिट 0, गेटिंग माई पॉइंट। We can write this. So this implies that s is equal to ut plus half at square. In this way we can prove this one. Getting my point? So this is the second equation of the kinematics. In this way we can prove second equation of the kinematics with the help of calculus method. Getting my point? Write down this one. Okay, third equation we have to prove now. Complete? Okay. Then I am removing this one. See, थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स हमें क्या बताता है, थर्ड इक्वेशन, तो मैं इसको हटा देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स वी नो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। v से हम स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वी कैन राइट दिस इज इक्वेशन 1। गेटिंग? तो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वी नो दिस। तो मैं यहाँ पे लिख दिया dv अपॉन dt इज इक्वल टू a। बट यहाँ पे dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt। गेटिंग? तो दिस इम्प्लाइज व्हाट यू कैन राइट, dv इज इक्वल टू a dt। कैन आई राइट दिस? ओके, एक काम करते हैं, dt हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको ना एक काम करते हैं, दोनों तरफ पहले इस इक्वेशन में दोनों तरफ ds मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में देखो हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर टाइम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो एक काम करते हैं, पहले हम चाहते हैं कि ये टाइम हट जाए, लेकिन हम टाइम को डायरेक्ट से काट नहीं सकते, तो हम एक यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, ऐसा थोड़ा सा इसको हम सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ ds मल्टीप्लाई करूँगा तो ds अपॉन dt भी में कन्वर्ट हो जाएगा और टाइम ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो बेटर है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ ds मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, a इंटू डी एस इज इक्वल टू dv अपॉन dt इंटू ds। कैन आई राइट दिस? यस। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी ds मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में भी ds मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी वैल्यू अनचेंज्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट a ds इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ds अपॉन dt को मैं अलग कर दिया, इंटू dv है तो dv को अलग कर दिया। कैन आई राइट? अब ds अपॉन dt क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो इसके जगह में मैं v पुट कर सकता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज a ds इज इक्वल टू v dv। कैन आई राइट दिस? अब अगर ये मिल गया, अब इसके लिए अब ये जो मिला a ds इज इक्वल टू v dv, ये d को मुझे हटाना है, d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हटाने का तरीका इंटीग्रेशन। सो वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। यहाँ पे s इज द वेरिएबल और यहाँ पे v वेरिएबल है,
तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 to s, so lower limit will be 0, upper limit will be s. Here the variable is v and we know that initially the velocity was u and finally the velocity becomes v. That is why the lower limit will be u, upper limit will be v. So this implies a ds, a behaves as constant, so a can be taken out from the integration. a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लिमिट फ्रॉम 0 to s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिमिट फ्रॉम u to v. अब एक काम करते हैं, सो दिस implies that ds का इंटीग्रेशन s, सो a into s लिमिट फ्रॉम 0 to s इज इक्वल टू v dv. यहाँ पे v का पावर 1 है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो v टू द पावर 1 का dv का इंटीग्रेशन बन जाएगा v टू द पावर 1 प्लस 1, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम u टू v. गेटिंग? सो दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू put the upper limit s minus put the lower limit 0 is equal to पुट द अपर लिमिट v की जगह में एक बार फर्स्ट v पुट करते हैं तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अब v की जगह में u पुट करो तो u स्क्वायर अपॉन 2. सो दिस इम्प्लाइज ए एस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा. सो ये 2 को यहाँ ले आते हैं, सो 2as इज इक्वल टू वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. So this implies that v square minus u square is equal to 2as. In this way we can prove the third equation of the kinematics with the help of calculus method. तो इस तरह हम तीनों इक्वेशंस को आज ग्राफिकल मेथड में भी प्रूव किए और कैलकुलस मेथड में भी प्रूव किए. गेटिंग माय पॉइंट? और दोनों तरीका हमें आना चाहिए. ये दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं लेकिन वही काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं. तो बेटर है हम जितने प्रोसेस को, हमारा थिंकिंग स्किल जितना इंक्रीज होगा हम उतना प्रोसेस को जानना चाहिए, उतना प्रोसेस को समझने के लिए आसान हो जाता है. और जितना प्रोसेस को हम सोचेंगे उतने तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं. एंड इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द all 3 kinematic equations with the help of graphical method as well as with the help of calculus method. Getting? Okay, in the next class we have to prove SNF formula with the help of calculus method. Okay, getting my point? Understood this one? If any questions you can ask. Okay, thank you.